Hello, children. So, once again, I am here with the second part of the chapter, the tsunami. In the first part, we read about some people, how these people lost their lives, and how the whole family was swept away in this tsunami, which caused really a big destruction, devastation in 2004. Now, in this second part, we are going to read about a girl named Tilly Smith, who was a British schoolgirl, and she was able to save many lives when this tsunami was struck, and when she was at the Phuket beach in Thailand. Though she has won a number of awards, Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. It means for saving number of people's lives, she was awarded with many honors, but her parents did not allow her to come on the television to give interview at how she saved the life and all that, because they don't wanted to make her too popular on the television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? Now it's a question to you people कि उसके पेरेंट्स ने डिसीजन क्यों लिया होगा. वो अपनी बच्ची को जो इतनी पॉपुलर होगी, जिसने इतने लोगों की लाइफ बचाई, उसको वो इंटरव्यू देने से मना करता है. So let us see now how she saved the life, how she came to know about this calamity and how she saved the life of these people. Here is a story from Thailand. Thailand, the Smith family from southeast England, means these people belong to southeast England, were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Okay, so these people had came at the beach. There was a resort which was in the southern Thailand, and they came there to celebrate Christmas. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. So she was 10 years at that time and a schoolgirl, and she was having a sister who was 7 years old. And the name of her parents are Penny and Colin Smith. So Smith is the surname here, and this is a Smith family. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. So which year it was? It was 2004, 26 December, when the tsunami waves were already on their wave. Already on their wave यानी already कुछ जगहों पर डिस्ट्रक्शन कर चुकी थी और आगे बढ़ रही थी बाकी जो और भी एरियाज थे उनको इफ़ेक्ट करने के लिए. तो डेडली सुनामी वेव्स वर ऑन द वे. दे हैड बीन ट्रिगर्ड मीन्स स्टार्टेड. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. यानी कि वो they here is waves triggered means started by a massive earthquake, यानी बहुत बड़ा सा earthquake भूकंप आया था नॉर्दर्न सुमात्रा में अर्ली दैट मॉर्निंग, जिसकी वजह से वो इतनी डेडली वेव्स शुरू हो गई थी. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इन. स्वेलिंग का मतलब होता है कि बहुत उफान में आना, राइज अप होना. ठीक है, तो द वाटर वॉज स्वेलिंग यानी वाटर का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा था. एंड कैप्ट कमिंग इन. कमिंग मीन्स गोइंग बैक, कमिंग अगेन. Penny Smith remembered, the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. तो पेनी स्मिथ कहती हैं कि मुझे याद है the beach was getting smaller and smaller. The beach was getting smaller and smaller का मतलब बीच छोटा नहीं हो रहा था. पानी का जो एरियाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बीच की तरफ कवर कर रहा था, यानी बीच तक उसने अपना एरिया कवर कर लिया था. यानी अपनी जो कोस्टल लाइन है उससे भी आगे वो सी का पानी वेव्स आ गई थी. आई डिडेंट नो वॉट वॉज हैपनिंग. मुझे पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है. द वाटर वॉज राइजिंग स्वेलिंग सो स्पीडीली. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग
टिली स्मिथ को कुछ एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. Now here she sensed something wrong. उसको ऐसा एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। और ये कैसे उसको पता चला, क्योंकि उसने थाईलैंड आने से पहले जस्ट 2 हफ्ते पहले ही स्कूल में एक लेसन पढ़ा था, ज्योग्राफी लेसन में, और वो ही उसके माइंड में चल रहा था। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. उसने देखा कि सी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। स्टार्ट टू फोम यानी उसमें उसकी लहरों में इतना सारा फोम यानी झाग हो रहा है, और वर्लपूल्स यानी पानी के अंदर जो इस तरह से होता है, राउंड राउंड पानी जिस स्पीड से घूमता है, ठीक है, उसको कहा जाता है वर्लपूल। तो उसने देखा कि जिसको हम जलावर्त भी कहते हैं हिंदी में। तो व्हेन शी सॉ दिस थिंग शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड्स इन 1946। इसका मतलब ये जो सुनामी है ये हवाई आइलैंड्स में 1946 में भी पहले आ चुका है, और उसने उसी वीडियो को उस दिन अपने स्कूल में उसको उसकी टीचर ने दिखाया था। हर ज्योग्राफी टीचर had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. So these are the reasons which cause the tsunami. तो उसकी टीचर ने उसको बताया था, उसकी क्लास में ये सब बच्चों को वीडियो दिखाई थी कि सुनामी कैसे आती है, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच इंडिकेट दिस कैलामिटी, एंड द मेन रीज़न बिहाइंड दिस सुनामी आर बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंड स्लाइड्स। यानी लैंड्स की जो प्लेट्स होती है जब ये आपस में टकराती हैं तब भी होता है, अर्थक्वेक से भी होता है, और वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी जो होती है तो उसकी वजह से भी लहरों में तेज़ बहाव हो जाता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। यानी ये लोग बीच पे थे तो उन्होंने, टिली को एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ, इट इज़ समथिंग लाइक सुनामी ओनली, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। तो उसने सबको कहा कि कुछ ना ज़रूर हो ना हो ये सी के अंदर अर्थक्वेक आया है जिसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा हिस्टेरिकल, यानी हम कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से डर के मारे घबरा कर चिल्लाना इधर उधर, तो वही कंडीशन टिली की थी। When you are hysterical, you shout, laugh or cry in a wild, excited way. तो she was crying, shouting in a wild way. I didn't know what a tsunami was. ना उसकी मदर पेनी कहती है कि मुझे नहीं पता कि सुनामी होता क्या है। But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. लेकिन टिली को इतना घबराता हुआ देख, डरा हुआ देख, उनको एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ गलत है, समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। ठीक है, तो टिली के पेरेंट्स उसको और उसकी सिस्टर को उस बीच से ले जाते हैं होटल में। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और उनके साथ साथ जो दूसरे भी टूरिस्ट थे उस बीच के ऊपर, उन सबको भी वो अवेयर कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं। Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. फिर तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा समुद्र ही बाहर आ गया हो समुद्र में से, पूरा बीच के ऊपर। इस तरह से इतनी बुरी तरीके से बड़ी बड़ी जाइजेंटिक वेव्स आई। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी कि यहाँ से भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। तो ये सारे फैमिली मेम्बर्स होटल के 3rd फ्लोर पर चले जाते हैं। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, यानी 3 बड़ी बड़ी सुनामी की लहरें आई, लेकिन ये इट वॉज़ अ गुड लक फॉर दिस पीपल
कि ये जो बिल्डिंग थी होटल की वो विथस्टूड यानी उन लहरों को बर्दाश्त कर पाई। और सर्ज हियर मीन्स फोर्स ऑफ 3 सुनामी वेव्स, यानी अक्सर इसमें ये देखा गया कि बिल्डिंग्स भी बह गई थी, लेकिन दे वर सेफ इन दैट होटल, द होटल वॉज सेफ। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो कुछ पल भी अगर और उस बीच पर रुकते तो डेफिनेटली दिस पीपल वुड हैव डाइड, वो ज़रूर मर जाते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. तो स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, जो दूसरे टूरिस्ट से मिले वो बाद में, तो पता चला कि बहुत से लोगों ने अपनी फैमिली को उसमें खो दिया। थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन, लेकिन जितने भी लोगों की जान बची है ये उस टिली की वजह से और उसकी जोग्राफी लेसन की वजह से थी कि दे हैड बिन फोरवॉर्न्ड यानी उनको पहले से ही वार्निंग का एहसास हो गया था, पहले से ही वो वार्न्ड हो गए थे, अलर्ट हो गए थे, अवेयर हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बच गई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। तो जब वो स्कूल लौटती है इंग्लैंड, जब ये लोग वापस जाते हैं तो वो अपने क्लासमेट्स को अपने इस इंसिडेंट के बारे में बताती है, अबाउट हर टेरिफाइंग टेल। टेरिफाइंग यानी कितना डरावना पल था इन लोगों के लिए, वो बच के आना भी एक बहुत बड़ी बात है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड पार्ट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ इन दिस थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन विच वी हैव रेड इन द फर्स्ट पार्ट एट द बिगनिंग, जिसमें क्वेश्चन बताया था, अगर आपने पढ़ा हो तो, डिड एनिमल्स सेंस अबाउट दिस सुनामी, है ना, डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग, क्या जानवरों को पता चल गया था कि सुनामी आएगी। तो इसका प्रूफ हम इसमें देख सकते हैं कि वाकई में जानवरों को, शायद सभी नहीं लेकिन कुछ जानवरों को ये पता चल गया था कि ऐसा कुछ होगा, और उसके पहले ही, सुनामी के आने से पहले ही अपने आप को सेफ जगह में इन्होंने अंडरग्राउंड कर लिया था। सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर इन द थर्ड पार्ट। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। यू कुड सी हियर, ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो इस पिक्चर को देखकर आपको क्या क्या सीन दिख रहा है इसमें, व्हाट यू हैव टू डिस्क्राइब हियर। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, काम ब्लू सी, रूइंड हर्ट्स। तो ये आपको हेल्प दे रखी है और इस तरह से आपको इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। इट मीन्स बिफोर द जायंट वेव्स, इसके पहले कि ये जायंटिक वेव्स, लहरें कोस्टल एरिया में एंटर करें इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स को पता चल गया था, टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, मतलब क्या होने वाला है। सो स्लैम्ड यानी तेज़ी से आना। दे फ्लड टू सेफ्टी, तो वो सारे जानवर सेफ जगह पर चले गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, यानी आई विटनेस यानी जिसने अपनी आँखों से देखा है इस पूरे सीन को, उसका ये मानना है कि एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, फ्लेमिंगोज अबेंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, and zoo animals rushed into the shelters and could not be enticed to come back out. Now here you could see elephants जो थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए थे। They screamed, यानी सुनामी आने से पहले की बात है ये। They screamed and ran for higher ground, खुली हायर ग्राउंड पे वो चले गए, ऊंची जगहों पर। Dogs refused to go outdoors, जो डॉग्स थे उन्होंने घर के बाहर निकलने से मना कर दिया यानी जब उनको ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था तो वो नहीं आ रहे थे घर के बाहर। फ्लेमिंगोज जो थे बर्ड्स, वो उनकी जो ब्रीडिंग एरियाज़ होती है
उस जगह पर भी वो नहीं गए। अबेंडन मतलब टू स्टॉप, नॉट टू गो। तो लो ब्रीडिंग लाइन ब्रीडिंग एरियाज और जो जू एनिमल्स थे वो अपने अपने शेल्टर्स में, जहाँ पर वो अंदर रहते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर वो अंदर चले गए एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट। और फिर वो जब तक ये सुनामी आई और गई नहीं तब तक वो कोई भी जानवर नज़र नहीं आया। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Now it is somewhere truth. ये सच है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सिक्स्थ सेंस होती है। और आप देखोगे जनरली जब भी कोई अर्थक्वेक आने वाला होता है तो उसके पहले ही ये लोग इधर उधर हलचल शुरू हो जाती है, चाहे वो जंगल हो, कहीं पे भी हो, मुर्गियों में, बंदरों में, बहुत सारे जानवरों में ये हलचल देखी जाती है। तो इनको पहले से पता चल जाता है कि जब अर्थ के अंदर पहले शेकिंग होती है, ट्रेमर्स पहले अंदर होते हैं फिर वो ऊपर आते हैं, तो उनको पहले से ये फीलिंग आ जाती है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर अक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एनिमल्स की जो सुनने की कैपेसिटी होती है वो हमसे भी ज़्यादा शार्प होती है, इसलिए वो अर्थ के अंदर होने वाली वाइब्रेशंस को सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर्स लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। यानी कि वो आने वाले डिज़ास्टर को पहले से ही फील कर लेते हैं, इसके पहले कि ह्यूमन बींग्स को पता चले, जानवरों को ये चीज़ पता चल जाती है। वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। अब ये श्योर हम नहीं हो सकते हैं कि एनिमल्स में सिक्स्थ सेंस होती है या नहीं, बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि एनिमल्स में सिक्स्थ सेंस होती है कि नहीं होती है, लेकिन ये फैक्ट बताया गया है कि इस सुनामी में जहाँ 1.5 लाख, ठीक है, 1,50,000 लोगों की जान गई, वहाँ पर बहुत नहीं के बराबर अनकाउंटेबल एनिमल्स पर फाउंड डेड, यानी बहुत कम एनिमल्स की जान इसमें गई। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि एनिमल्स क्यों नहीं मरे, वो भी अपने, तो उनको पहले से पता चल गया था एंड दे हैव टेकन द सेफ साइड। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. यानी इस एरिया में जहाँ पर हज़ारों लोग पैरिश हो गए थे, मर गए थे, वहाँ पर बफेलोज, गोट्स और जो डॉग्स थे अनहार्म्ड, इनको कोई भी हानि नहीं पहुँची थी। दे वर नॉट हार्म्ड। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is a home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. यानी श्रीलंका का जो नेशनल पार्क है यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ है एनिमल्स की, एलिफेंट्स है, लेपर्ड्स है और 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। यानी 60 विजिटर्स, 60 विजिटर जो इस पार्क के अंदर थे वो तक बहकर चले गए, लेकिन बट नो एनिमल कार्कासेस वर फाउंड। यानी कि इतने विजिटर्स मर गए, नेशनल पार्क था, सब था, इतने जानवर थे, लेकिन कोई भी एनिमल का डेड बॉडी नहीं मिला, और एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, सिर्फ 2 बफेलोज थी जो मिली डेड, बाकी कोई भी जानवर नहीं मिला। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, यानी सुनामी आने से 1 घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम पतनंगला बीच। तो विजिटर्स ने 1 घंटे पहले, जिसने ये पूरा डिज़ास्टर विटनेस किया है, उनका ये कहना है कि सुनामी आने से 1 घंटा पहले उन्होंने देखा कि 3 एलिफेंट बहुत तेज़ी से बीच की तरफ से वापस पार्क की तरफ दौड़ रहे हैं।
A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said that his 2 dogs would not go for their daily run on their beach. तो एक जेंटलमैन जो श्रीलंका का है उसके 2 डॉग्स हैं, वो कहता है कि उसके डॉग्स रोज़ बाहर घूमने के लिए वो लेके जाता है उनको, लेकिन उस दिन उसके डॉग्स ने भी घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। वो हमेशा उनको बीच पे ले जाता है, बट at that time these 2 dogs refused to go over there. They are usually excited to go on this outing, यानी वो रोज़ बहुत एक्साइटेड होते हैं आउटिंग में जाने के लिए, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और उस दिन वो भी नहीं गया और उसके डॉग्स को भी नहीं ले गया, तो इससे उसकी भी जान बच गई और उसके डॉग्स की भी जान बच गई। सो दिस थिंग प्रूव समवेयर that really animals have sixth sense, and this is the reason that most of the animals were saved in this. Not many animals lost their lives. Okay, so here are some comprehension check questions given there. I'll be giving you answers of it, but try to solve it on your own.